Okay, welcome back. फिर से एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। So we're looking, can you quickly tell me what are the 6 areas we spoke about? और जल्दी से बता सकते हैं कौन से 6 बिंदुओं पे अभी हमने पहले सत्र में बात की थी। First one is, becoming the best version of yourself. Okay, then emotional health. Personal management, Yes. Personal management, there are 4 things. What's there? relationship skills, Career, finances, time, and household skills. The 4th one is relationship skills. In that there is communication, roles, and in-laws. And the 5th one we said was overcoming the past. trauma, 6th is sexual purity. And the 7th we are going to look at is Christian maturity, calling, and ministry. और 7वां बिंदु जो है मसीह परिपक्वता, बुलाहट और सेवकाई। A very important part of preparation is building yourself up spiritually. और देखिए विवाह की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है कि हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करें। And some of the ways that you desire for growth is through your time with God. और एक सबसे बेहतर तरीका कि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं वो है आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बेहतर रीति से बिताएं। Like reading the word of God, praying, speaking in tongues, worship. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आराधना करना। So all this again, you take a stock to see where you are in your spiritual journey. और ये सारी चीजें हैं जहां आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप अपनी आत्मिक यात्रा में कहां पर हैं। So you should be in a place to help your partner grow spiritually, not bring them down. और आप एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आप अपने साथी को आत्मिक रीति से बढ़ा सकें। ऐसा ना हो कि उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लाएं। Okay? ठीक है। Another part of it is your calling, your purpose. और एक और भाग है वो है आपकी बुलाहट, आपके जीवन का उद्देश्य। So God, the Lord has something for us to do in the body of Christ. परमेश्वर के पास हमारे लिए, परमेश्वर की देह में कुछ करने के लिए जरूर है। So you first of all have to discover what is your own calling. और सबसे पहले आपको स्वयं अपनी ही बुलाहट को खोजने की आवश्यकता है। So that when you find someone to get married, और जब आप किसी को खोज लेते हैं कि आप उसके साथ विवाह करेंगे, you can find out if they complement your calling. और आप इस बात को पाएंगे कि वो आपकी बुलाहट का संयोग करे या उसमें और जोड़े। Why is this important? और क्यों ये महत्वपूर्ण है? Suppose you want to serve God in some village somewhere in India. और आप उदाहरण के लिए सोच लीजिए कि आप भारत के किसी गांव में सेवा करना चाहते हैं। And your partner wants to go abroad to make money to support some missionary in the village. और लेकिन जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो तो विदेश जाकर धन कमाकर किसी गांव में किसी सेवक को आर्थिक मदद करना चाहता है। This doesn't complement one another, और right? ये एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाएंगे। So that is why it's important to determine that for yourself as well as for the person you're going to marry. और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपनी बुलाहट को भी पहचानें और जो सामने वाला है उसकी भी। Okay? So ठीक है। these 7 aspects और ये जो 7 बिंदु हैं, commit to preparing yourself before you get married. और इससे पहले कि आप विवाह करें अपने आप को इन 7 बिंदुओं के तहत तैयार करें। Okay, any questions here? और यहाँ पे कोई प्रश्न है? Any questions? कोई प्रश्न? Okay, so we'll move to chapter 3. और तीसरे अध्याय में हम चलते हैं। And this chapter is about how can I have guidance in making the choice of a partner I want to marry. और ये अध्याय इस बात पे है कि यदि मुझे विवाह करने के लिए एक साथी का चुनाव करना है तो मुझे कैसे सहायता मिल सकती है। So when you go to buy a phone, जब आप एक फोन खरीदने जाते हैं, what do you do? आप क्या करते हैं? You research
आप खोजबीन करते हैं, Then, उसके बाद क्या करते हैं? huh? Louder, louder. जोर से बोलिए। पैसे जोड़ते हैं। That keeps money aside. Okay. First of all, you have to understand why you need a new phone, no? और सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है नए फोन की क्या जरूरत है। Like maybe you want an iPhone. Why do you need an iPhone? और यदि आप एक आईफोन खरीदने जा रहे हैं तो पहले समझिए कि आईफोन क्यों खरीदना है। And after you understand what you need, you look for something that will meet your need. और जब आप एक बार समझ जाते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, तब आप उस आवश्यकता की खोज भी करिए कि वो आपकी पूर्ति हो। So it's so much more in choosing a partner. और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा एक साथी के चुनाव करने में भी है। How many of you have thought about the person, the traits of the person you may want to marry? और आप में से कितने लोगों ने जिससे शादी करने जा रहे हैं वो कैसा दिखना, चलना, होना चाहिए, कितने लोगों ने सोचा है कैसा होना चाहिए? सपनों का Good. राजकुमार। 2, 3, I think. I think 3 people, 4, 5. Very good. That's good. I appreciate you for doing that. और आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है, हम बढ़ावा कर रहे हैं आपका। Why? Why is that important? और क्यों जरूरी है सोचना? If you don't know what you want, you'll go marry anything you और see. जब आपको पता ही नहीं है कि शादी किससे करना है तो जो मिला उसी से कर लाएंगे। So it's important to know, I'm not saying who you will marry, but what are the traits you would like to see. और वो मैं ये नहीं कह रही कि आप किससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जो आप अपने साथी के अंदर देखना पसंद करेंगे। So when we are talking about this, I also understand that sometimes we come from homes where our parents choose a partner for us. और जब हम इस बात के बारे में शिक्षा दे रहे हैं तो इस बात को भी जानते हैं कि कई बार हम ऐसे परिवारों से आते हैं जहां हमारे घर वाले हमारे साथियों को हमारे लिए पसंद करते हैं। And maybe in those situations, you need to trust that God knows best. और उस परिस्थिति के अंदर में आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके लिए बेहतर चुनाव करेगा। If you are in a place where maybe your families ask for your choice, और यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपके परिवार वाले आपसे पूछते हैं कि आप बताइए आप किससे शादी करना चाहते हैं, make the best use of preparing yourself on what kind of a person you want. और तो आप सबसे बेहतर इस बात पर समय गुजारें अपने आप को तैयार करने के लिए कि आपको किस प्रकार के व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। So you have to look for somebody who matches you in some way. और आपको एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है जो किसी ना किसी क्षेत्र में आपसे मेल खाता हो। Now by matching, I'm not saying you should have the exact copy. और जब हम कहते हैं मेल खाने का मतलब तो ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके जैसे कार्बन कॉपी हो जाए कोई, But to have someone who may be in agreement with you. और लेकिन कोई एक ऐसा जन जो आपके साथ अपनी सहमति जता सके। That even with your differences, you are able to come together. और भले ही आपके अंदर में भिन्नताएं होंगी लेकिन फिर भी आप दोनों साथ में चलना चाहते हैं। So let's look at some factors of how to get a good match or a compatibility. और हम अभी कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार हम जो है एक अनुकूल साथी, अनुकूल संगी को प्राप्त कर सकें या ढूंढ सकें। So first one is to look at spiritual compatibility, spiritual matching. और सबसे पहले जो है वो है आत्मिक मेल खाने वाला या आत्मिक अनुकूलता। So is it enough if the person is a believer? और ये काफी है या एक व्यक्ति विश्वासी है तो? Okay, why? और अगर नहीं तो क्यों? You should always have an answer for why you say something. और जब आप कुछ कहते हैं तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि क्यों कहा।
Huh? I said, is it enough to only be a Vishwasi? और विश्वासी होना ही, दोनों का विश्वासी होना ही पर्याप्त है क्या? Sorry, didn't understand. विश्वास करने में कुछ नहीं रखा, वो तो कोई तो एक शब्द में बताइए, रिलेशनशिप विद गॉड, आपका मतलब है रिलेशनशिप विद गॉड. He's trying to say that believe anybody can do, but we should have a good Good relationship with God. relationship with God. Okay. Yes. No. I'm talking only about spiritual, not about आत्मिक emotional. बातें कर रहे हैं. Is it enough only to be a believer? क्या एक विश्वासी होना ही काफी है? प्रश्न ये है. Louder, louder. Okay. So that will be a difference. Okay. All right. Okay. So even if they are believers, you need to really understand also what their spiritual disciplines are. और देखिए, भले ही विश्वासी होंगे, लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है कि उनके आत्मिक अनुशासन क्या है. Like one of the people, even though they are believers, they may just, only on a Sunday, they are spiritual. All the rest of the days, they're living another life. और देखिए, अब विश्वासी होंगे, लेकिन रविवार के दिन ही वो थोड़े आत्मिक होते हैं, बाकी सारे दिन जो है वो दूसरा जीवन जीते हैं. Maybe you have very clear quiet times, reading the word, studying the word, whereas the other person may not do that. और हो सकता है कि शायद आप जो हैं परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छे से वचन में, प्रार्थना में समय बिताते होंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसका ऐसा परमेश्वर के साथ रिश्ता ना हो. So this can cause, it's not a good match. और तो ये कोई एक अच्छा जोड़ नहीं है. So that's what you need to find out when you're making a choice of where they are in their spiritual growth. और जब आप चुनाव करते हैं, तब आपको इस बात को जरूर जांचने की आवश्यकता है कि वो आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में कहां पर खड़े हुए हैं. Okay, how do they match you emotionally? और हम भावनात्मक रीति से कैसे अनुकूलता को दर्शा सकते हैं? So can you talk to each other? Are you able to express your emotions with the other person? और आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्या अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं? Can you have nice conversations, intellectual conversations with the other person? क्या आप दूसरे व्यक्ति के साथ में बुद्धिमानी की बातचीत, वार्तालाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? Because this is a journey that takes many years. You are going to be living with this person every day, talking, discussing things. So you need to check to see if that matches. और आपको इस बात को इसीलिए जांचने की आवश्यकता है क्योंकि एक लंबा जीवन है जिसमें आपको उसके साथ ही जीना है, उसी से बातें करनी है. तो यहाँ पर आपको इस बात को बहुत जरूरी है कि आप कर पाएंगे कि नहीं. Another thing to match to see if you are physically attracted to the other person. और एक और चीज जिसे हमें जांचने की आवश्यकता है वो है शारीरिक. क्या मैं वो उस दूसरे व्यक्ति को अपने शारीरिक रीति से लुभा पा रहा हूं अपनी ओर या नहीं? There's nothing wrong in liking how somebody looks. और इसमें कोई गलत नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता और वो मुझे पसंद आता है, As long as that's not the only criteria. और जब तक कि केवल वही बात ना हो. Okay. And the next one is, in your calling, in your purpose, is there any kind of matching? As I gave an example last time. और अंतिम बिंदु जो है जीवन की बुलाहट में अनुकूलता, जैसे पहले भी कहा कि हम अपनी बुलाहट में उसको जांच लें कि वो हमारी बुलाहट से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं. Okay. So what are some signs that should tell you that this may not be a good match? और वो कौन से कुछ चिन्ह होंगे जिसको देखकर आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि शायद ये मेरे लिए सही जोड़ नहीं है? What do you think? आप क्या सोचते हैं?
hold a conversation. Okay. All right. So there's no compatibility, you're saying. Okay. Then what are the other signs that you will say this person may not? बताइए a कि good match. आपको किस बात को देखकर लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है. Huh? If there's no understanding, okay, so we said that emotional compatibilities, the compatibility is not there. What else? और बताइए. Vyavahar, नेचर, behavior. बिहेवियर. What kind of behavior? Okay, so some character weakness, some weakness in the behavior, in the character. Okay. और all right. यदि व्यवहार में कोई कमजोरी है, चरित्र में कमजोरी है, तो हमें लगेगा ये शायद हमारे लिए नहीं है. What else? और बताइए. Ignorance. Parents. Uneducated. Who? The parents are uneducated. बैड हैबिट्स. Bad habits. Okay. Addictions. Okay. Good. Someone said, you said something. Who? The person, is it? Okay. So that's compatibility. No, you may be PhD and they have not studied. Definitely not compatible. और मेल बिल्कुल नहीं खाएंगे. आप डॉक्टर हैं और वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो कहाँ से मेल खा पाएंगे. Okay. Anything else? और बताइए, कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आपको लगता है कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी कोई पहचान. If there's a lot of control by the parents, और यदि माँ बाप की ओर से बहुत ज्यादा कसा जा रहा है, or even too much of dependence on the parents, या तो फिर पूरी रीति से माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है, or they may be not, someone said, I think, irresponsible, not working, not taking care of themselves, always dependent on the parents for money. और आप में से किसी ने कहा था कि वो बिल्कुल अपनी देखभाल नहीं करते हैं, हर बात पे माँ बाप के ऊपर निर्भर हैं, उन्हीं पे आश्रित हैं पूरी रीति से. Right? So these are some of the signs you've got to look out for, to watch out for when you are considering someone to get married. और देखिए, ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जब हम विवाह के बारे में सोचते हैं कि इन सारे चिन्हों को देखने की आवश्यकता है कि हम उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे. So it's important, number one, to write down what are some of your expectations from the person you want to be married. और देखिए, ये बहुत जरूरी है कि पहले हम इस बात को लिख लें कि जिस व्यक्ति से हम विवाह करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से हमारी अपेक्षा क्या क्या है. So what may be very important to you, what may be not very important. और हो सकता है कि आपके लिए कुछ बात बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत महत्व रखती हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ महत्व ना रखती हो. Right? So take time to put down all your thoughts about what you are looking for in the person you want to marry. तो आप थोड़ा समय लें और इस बात को एक कागज पर इस बात को लिख लें कि जिस व्यक्ति से आप विवाह करने जा रहे हैं, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं. There are some questions in your notebook. और आपकी नोटबुक में जो आपको दिया गया है, इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं. That will help you to identify some qualities you want in the person you want to marry. और जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं और उसके अंदर में क्या योग्यताओं को आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, वो आपकी सहायता करेंगे. Okay, just a note for Kishan. Kishan, the notes, PDF notes are available on the website. If you go to apcwo.org/books, you will be able to download this PDF of Marriage and Family, both in Hindi as well as English. It's available on the website. और जो PDF फॉर्म है वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, there's a question here. और एक प्रश्न है यहाँ. Do you think there's that one person you should get married to, that if you don't get married to that person, you will never ever get married? Do you think so?
और यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अकेला वही व्यक्ति है जिसके साथ आपकी जीवन में आपकी शादी हो गई तो नैया पार हो जाएगी, अगर उससे शादी नहीं हुई तो आप डूब जाएंगे? ऐसा सोचते हैं क्या आप? Nobody wants to give answer. What do you say? God has made someone specific for everyone. So if you miss that person, No, I'm saying that He does have a plan, but even if it goes astray from that plan, He will lead you and can get married to others. But God does have a specific person in mind. okay, you were saying something? So how do you know that is the person? That's the question she asks. What do others say? Boys? आप लोग क्या सोचते हैं, लड़के लोग के एक ही जन है जिससे आपको लगता है कि यही है जिससे मेरी शादी होनी चाहिए, अगर इससे शादी नहीं हुई तो फिर खत्म सब कुछ? He's saying something. Yeah, आप कुछ कह रहे हैं? he's saying. बोलिए. Come, say. What did he say? Huh? Honi chahiye. It has to happen. Has to happen. Okay. All right. Anyone else? और कोई है? कोई भी है जो ऐसा सोचता है कि यही वो व्यक्ति है जिससे मेरी शादी होनी चाहिए, इससे शादी नहीं हुई? Okay, so let's look at an example. और उदाहरण देखेंगे. We look at the story of how Abraham sent his servant to find a wife for Isaac. और हम देखते हैं कहानी के रूप में कि अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा अपने बेटे इसहाक You know के the लिए दुल्हन story? ढूंढने के लिए. आप जानते कहानी को? Right? So Abraham tells his servant, gives him certain guidelines and says, you must find a wife for my son from my own ancestral place. और देखिए अब्राहम जो है उसे कुछ निर्देश देता है. वो कहता है कि तुझे मेरे घराने में ही जाना है, मेरे रिश्तेदारों के मध्य में ही मेरे लड़के के लिए बहू को ढूंढ कर लेकर आना है. And Abraham tells the servant, if you don't find anyone, come back. और वो कहता है यदि तुझे वहां कोई नहीं मिले तो वापस आ जाना. So the servant, when he goes on his journey, और जब ये दास अपनी यात्रा में जा रहा है, he speaks to God and says, God, guide me in finding a right person for Isaac. और वो रास्ते में जब होता है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि मेरे स्वामी के बेटे के लिए सही बहू ढूंढने के लिए परमेश्वर आप मेरी सहायता करें. And how did Abraham's servant thought of some way to get that guidance. और अब्राहम के दास ने वो कौन सा तरीका सोचा कि वो अगुवाई को प्राप्त करे. So what did Abraham's servant tell God? और अब्राहम के दास ने परमेश्वर से क्या कहा? Right. So when I go, if there's a girl who comes and asks me to give me and my camels water, I will take that as a sign. और वो कहता है कि जब एक लड़की आकर मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाने के लिए मुझसे कहती है तो मैं उसे एक चिन्ह के रूप में लूंगा कि परमेश्वर आपने उसे भेजा है. So he was thinking of a way of how he could be guided to find a nice girl. और वो एक रास्ता सोच रहा था परमेश्वर की ओर से कि किस प्रकार से अपने मालिक के लिए एक अच्छी लड़की को खोज के लाए. So what happened? We know that Rebecca came. She offered to give water to Abraham and the camels. और देखिए हम जानते हैं कि और रिबेका वहां आती है और वो अब्राहम के दास को पानी पिलाती है, उसके ऊंटों को पानी पिलाती है. Right? Yeah. And then Abraham's servant asks
Rebecca where she is from, और उसके बाद में अब्राहम का दास उससे पूछता है कि वो कहाँ से है, and they go, and Abraham's servant goes to Laban's house, और अब्राहम का सेवक लाबान के घर जाता है, right? And then they have a discussion and they have a talk there. और वहां पर वो लोग बातें करते हैं। And what happens over there? और वहां पर क्या होता है? We see that Abraham's servant tells Laban about the whole history. और अब्राहम का दास लाबान को पूरा इतिहास वहां पर सुनाता है, And tells him, I believe that God has guided me to ask you this, to bring this proposal to you. और वो कहता है कि ये परमेश्वर यहोवा है मेरे स्वामी के, जिसने सहायता किया कि मैं इस रिश्ते को तेरे पास ला सका और मैं ये रिश्ता तेरे सामने रखता हूँ। And so what does Laban say? Laban says, okay, let us ask Rebecca what she thinks. और लाबान ने क्या कहा कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रिबेका को पूछते हैं वो क्या कहती है। And what does Rebecca say? और रिबेका ने क्या कहा? Yes. हाँ। Is it possible that Rebecca could have said no? और क्या ये संभव था कि रिबेका ना कह सकती थी? Right? So what does that indicate? और ये क्या दर्शाता है? That Rebecca could have said no, even when, now we know that, God had a plan, but Rebecca could have said no, and we know that the servant would have accepted that no. और देखिए, अभी हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की योजना है, लेकिन रिबेका को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। रिबेका उस बात को सुन के रिश्ते के लिए ना कह सकती थी, और जो दास है अब्राहम का, उस ना को सुनकर वापस आ सकता था। Also, Abraham's servant did not went back to the family and asked the family also. He did not override that decision. और इस बात को भी हमें देखने की जरूरत है कि जो अब्राहम का दास है, उसने दोबारा से जाकर लाबान से उस रिश्ते की मांग को नहीं किया। So in this story we see that Abraham's servant asked for guidance, and with that guidance saw someone, asked permission from the family as well as Rebecca, and then proceeded. और इस कहानी में हम इस प्रकार देखते हैं कि उस दास ने परमेश्वर से सहायता को मांगा, और परमेश्वर की सहायता से उसने उस लड़की को खोजा, और जब वो उस परिवार में जाता है उनसे अनुमति मांगता है, उस परिवार के बाद उस लड़की की अनुमति को मांगता है। So we do not believe, understanding this story, that there is that one person you should get married to. और So from the story, we believe that there is not just that one person you should be married to. और इस कहानी से हम एक पाठ सीखते हैं, वो ये पाठ है कि वो एक ही व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए हमें उसी व्यक्ति से शादी करना है, ऐसा नहीं है। So for us who are in the New Testament, believe as New Testament believers, और हम जो नए नियम के अंदर में विश्वासी हैं, we are guided by whom? और हम किसके द्वारा अगुवाई पाते हैं? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So our guidance or our search comes from the Holy Spirit. और हमारी अगुवाई और हमारी खोज जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। It comes from also the Word of God. और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा भी आता है। And it also comes from our renewing of our minds. और वो उसके साथ साथ हमारे मन के नवीनीकरण के द्वारा भी आता है। So when you are searching for a person, और जब आप किसी व्यक्ति की खोज में होते हैं, you are not going to look for that one person, और आप उस एक व्यक्ति को नहीं खोजते हैं, but you are recognizing the person God is leading you to. और आप उस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर आपको जिसके लिए ले जाता है। And then you determine whether that is the right person for you. और उसके बाद में आप निर्धारित करते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। So the one you choose with God's guidance, और जिसको परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आप चुनते हैं, finally will become the person for you.
और वही व्यक्ति जो है आपके लिए अंतिम बन जाता है। Yes, no, हाँ ना, 50-50. Right? So, and that's exactly why in the earlier part of this chapter, we have emphasized the fact that you need to understand or know the traits you are looking for. और इसीलिए हमने इस अध्याय के आरंभ में ही इस बात का देखा था कि वो चीजें जो आप एक व्यक्ति के अंदर में देखना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। Because God will guide you to people like that. और क्योंकि परमेश्वर वैसे ही लोगों के पास आपकी अगुवाई करेगा And you have to make the choice. और आपको चुनाव करना पड़ेगा। And that person will become that person for your life, that one person. और वो व्यक्ति जिसको आप चुनते हैं, जो योग्यताएं आपको चाहिए उसके आधार पर वो व्यक्ति वो अकेला व्यक्ति बन जाता है जो आपके जीवन का साथी बनता है। So God did not make you like a puppet. परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया है। He has given you a mind परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है to think, to reason, और सोचने के लिए, विचार करने के लिए, and He wants you to use it. और वो चाहता है कि आप उसका उपयोग भी करें। Don't put it to sleep. और दिमाग को सोने के लिए मत रखिए। Okay? ठीक है? All right. So how can you and I really understand God's guidance when we are looking for a partner? और जब हम अपने साथी को ढूंढ रहे होते हैं तो हम कैसे परमेश्वर की सहायता को मांग सकते हैं? So first of all, does this person have all the qualities and traits I have written? और सबसे पहले जो योग्यताएं मैंने जिस व्यक्ति को चाहता हूं उसको देखने के लिए क्या वो योग्यताएं उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? Are they compatible spiritually, emotionally, physically, in calling? क्या वो अनुकूल है बुलाहट में, शारीरिक रीति से, रूप में और सारी चीजों में क्या वो मेरे अनुकूल है? Is there any warning sign that we spoke about earlier? Some warning sign that we have to notice? क्या कुछ चेतावनी के चिन्ह हैं या क्या उन उचित रीति से जिनके बारे में पहले बात किया था क्या वो चिन्ह दिख रहे हैं? Is the Holy Spirit leading you to that person? क्या उस व्यक्ति के तरफ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है? Does the other person also say yes? और क्या दूसरा व्यक्ति भी आपके प्रति हाँ कहता है? Are your parents supporting of this? और क्या माता पिता सहयोग कर रहे हैं? And what about your spiritual elders or your mentors? Are they agreeable to this? और आपके जो आत्मिक अभिभावक हैं, आपके आत्मिक अगुवे हैं, क्या वो आपके साथ सहमत हैं, वो सहयोग कर रहे हैं? So these are some ways you can be guided. और ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप अगुवाई पा सकते हैं। Often I hear this situation. और देखिए इस परिस्थिति को अक्सर सुना जाता है। One person says they have had a dream about who they're going to get married to. और एक व्यक्ति बोलता है कि उसे सपना आया है कि उसे किससे शादी करनी है। And they go approach that person and say, God told me that I should marry you. और वो जाकर दूसरे को कहता है मुझे सपना आया, परमेश्वर ने कहा है तुमसे शादी करना है। But the other person says, no, God has not told me that. और लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर ने मुझे तो नहीं बताया। What do you do? आप क्या करेंगे? Who made mistake? Girl made mistake, God made mistake, boy made mistake. Who? किसने गलती करी है? लड़की ने गलती की या लड़के ने गलती की या परमेश्वर ने गलती कर दी? Problem, no? समस्या है। Okay, so as we were saying, if there is no mutual agreement, और जब एक सहमति नहीं है दोनों में, please move on. और तो कृपया कर वहां से निकल जाइए। Don't hang on saying, God told me this, I will, for the 25, 30, 40 years of my life, I will wait. और ऐसा मत करिए, परमेश्वर ने कहा है तो अगले 20-25 साल में जो है यहीं पर इसी के लिए इंतजार करूंगा। Till they say yes. और जब तक वो हाँ ना कह देगी तब तक मैं यहीं रुकूंगा। For God's sake, move on. परमेश्वर के लिए आगे बढ़ जाइए। Okay? ठीक है? All right. So some guidelines for
For if you are engaged, और यदि आपकी मंगनी हो जाती है तब कुछ निर्देश आपके लिए हैं। one is no sex before marriage. और सबसे पहला है कि शादी के पहले कोई यौन संबंध नहीं। God desires that the marriage bed be honored. Hebrews 13:4. और इब्रानी 13:14 में लिखा है परमेश्वर चाहता है कि विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। So remember that marriage is sexual encounter is only within marriage. So avoid, keep away any form of sexual encounter in your engagement periods. और देखिए जब आपकी सगाई हो जाती है उसके बाद में आप किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध से अपने आप को दूर करें, क्योंकि विवाह का बिछौना विवाह के लिए पवित्र रहना चाहिए। Also, if we are in Christian ministry, और उसके साथ साथ यदि हम मसीह सेवकाई के अंदर में हैं, the standards are very high. और तब उसके जो स्तर हैं बहुत ऊंचे हैं। If you remember, Paul writes this to Timothy. और यदि आप याद करें कि पौलुस जो है तिमुथियुस को इस प्रकार से लिखता है, 1 Timothy 4:12. Someone can read that. और पहला तिमुथियुस 4 उसका 12 वचन कोई भी जोर से पढ़ सकते हैं। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। So it says, be an example to others in purity. और वो कहता है दूसरों के लिए शुद्ध पवित्रता में आदर्श बन जा। So we are all called to be examples to the world outside. और हम बाहर के संसार के लिए सभी जन उदाहरण बनने के लिए बुलाए गए हैं। If we behave like the world, then there's nothing different about us. और यदि हम संसार के समान ही व्यवहार करें तब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। So until you are married, you are not married. और देखिए जब तक आपका विवाह नहीं होता आप विवाहित नहीं हैं। Okay? ठीक है। All right. Now there may be sometimes you may need to break off an engagement. और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी सगाई तोड़नी है। And you need to know the signs of when you can break that. और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से चिन्ह होंगे जिन्हें देखकर आप अपनी सगाई को तोड़ सकते हैं। Especially when the other person is very controlling. और विशेषकर जब दूसरा व्यक्ति जो है आपके ऊपर में बहुत नियंत्रण करता हो, Or is abusive. और या तो वो बुरा व्यवहार करने वाला हो, Or crooked. और बहुत चालबाज हो, Or if they're very dependent on you emotionally. और या तो दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से निर्भर हो। If they're not carrying a responsibility, they don't have job, they don't have money, they're always borrowing. It's a character weakness. अगर वो जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं करता है, पैसा नहीं है, हमेशा इधर उधर से उधार लेकर जिंदगी काटता है, तो ये चिन्ह है। If there are spiritual differences, wide spiritual differences. और यदि बड़े आत्मिक भिन्नताएं हैं वो भी, that also becomes a sign for breaking engagement. और वो भी हमारे लिए एक चिन्ह बन जाती है कि हम उस मंगनी को तोड़कर आगे बढ़े। Okay, the last one where brother asked a question, is it wrong to be single? और देखिए भाई ने जो प्रश्न पूछा था कि अकेला रहना ठीक है। Okay, so what are some reasons we should be single or we can be single? और वो कौन कौन से कारण होने चाहिए कि हम अकेले रहें या हम अकेले रह सकते हैं। After breakup, better to be single. दिल टूट जाने के बाद में बेहतर होगा कि आप it? अकेले रहिए। Is that a good reason? अच्छा कारण है। Then what are the reasons for being single? और अकेले रहने के फिर क्या कारण है। Not being ready for marriage. Okay, we're talking about single for life, not for the time period. Single for life. उनका मानना है कि ब्रह्मचारी को अपनाना है और जीवन भर अकेले रहना। Why was Paul single? और पौलुस क्यों अविवाहित थे। Okay, so there were kingdom purposes that he was pursuing.
और राज्य के कार्य थे, उद्देश्य थे जिनके पीछे वो लगे हुए थे। Okay, let's read Matthew chapter 19, verse 11 and 12. और मत्ती 19 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़े। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिन्होंने यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ निपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ निपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने निपुंसक बनाया, और कुछ निपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को निपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकते हैं वह ग्रहण करें। So it says, those who decided not to get married for kingdom reasons. और यहाँ लिखा है, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है, Which means they want to choose and keep their life to pursue the things that matter to the kingdom of God. और इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए सौंप दिया है और वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं। Not that it is wrong to get married, but when you do get married, there are multiple responsibilities. So a person who wants to follow kingdom purposes keeps from that responsibility of marriage. और विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप विवाह करते हैं तो विवाह में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो विवाह की जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अकेला छोड़ा है। Also, when we see Paul, he was single because he wanted, he could do it as a gift. He had the ability to stay single or be a celibate as a gift. और देखिए, जब हम पौलुस प्रेरित के बारे में देखते हैं तो ये समझा जाता है कि ऐसे करने की योग्यता एक वरदान है और एक सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। And so not everyone can be celibate or और फिर भी हर एक अविवाहित नहीं रह सकता है। And so there is no sin in getting married. और इसीलिए अविवाहित रहने की सामर्थ्य नहीं रहती, इसीलिए विवाह करना पाप नहीं है। So singleness is a choice where you are looking at doing the purposes of God. और देखिए, अविवाहित रहना एक चुनाव है कि आप परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अविवाहित रहना चाहते हैं या नहीं। Now sometimes you may be single, you may be waiting and you are single. और कई बार ऐसा होता है कि आप इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए आप अभी तक अविवाहित हैं। So what should you do at that time? और ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? Mourn, weep. और दुख मनाइए। Is it to weep? Should you weep? और क्या दुख मनाना है उस समय पर? Huh? Come closer to God, okay? परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। So waiting is not a period of being passive. Waiting is not a period of not being active. और देखिए, इंतजार का जो समय है वो ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे आप क्रियाहीन हो जाएं, आपके अंदर कोई क्रिया ना हो। You should be active at that time. Continue to pursue what God is asking you to do then. और आपको निरंतर कार्यरत रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो करने के लिए आपको बुलाया है, ठहराया है, आप उसे निरंतर करते रहें। Marriage is only one part of God's big design for your life. और परमेश्वर ने जो जीवन आपके लिए रचा है, विवाह उसमें एकमात्र इच्छा है परमेश्वर So की। concentrate on other things till you find someone to be married. और जब तक आपको विवाह करने के लिए नहीं मिल जाता है, तब तक बाकी जो परमेश्वर ने आपको कार्य सौंपा है उसमें निरंतर बने रहें, करते रहें। Okay? ठीक है? All right. Now I'm open for questions. 5 minutes, 10 questions. और 5 मिनट 10 प्रश्न जल्दी से पूछ सकते हैं। Is your question answered? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? Okay. Too much? Am I going too fast?
और तेजी से जा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा दिया आज, Tired? थक गए हैं आप लोग? So we'll have one more hour then till 6 o'clock. 6 बजे तक पढ़ाएं? Okay, no questions? कोई प्रश्न नहीं है? कोई सवाल नहीं है आप लोग के पास? Okay, so I've got 100 marks out of 100, huh? सो मुझे 100 में से 100 अंक मिल गए, Or 0 out of 100. या फिर शून्य मिला है? 100 out of 100. Okay, let's pray. Then let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for revealing to us your heart for marriage. परमेश्वर, धन्यवाद के विवाह के प्रति आपने अपने हृदय को हमारे सामने व्यक्त किया है। It's such a beautiful institution और ये सच में बड़ा सुंदर संस्थान है, that you desire for us to walk in. और जो आपने जिसकी संरचना की है कि हम इसमें होकर चलें। We pray that you will open our hearts to your principles. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपने नियमों के लिए हमारे हृदय को खोलेंगे, And we will open our hearts for preparation और हम अपने हृदय को उस तैयारी के लिए खोलेंगे, and be willing to be changed by your spirit. आपकी आत्मा के द्वारा हम बदलने के लिए तैयार हैं। I pray, Lord, for each person in this class और इस क्लास के हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं that you will work in their hearts to prepare forward. परमेश्वर, आप उनके हृदय में चलेंगे कि वो आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। I pray, God, that they will be willing to pray and seek you for guidance in searching for a person to marry. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी अगुवाई के लिए आपकी ओर अपनी आंखों को लगाए रहेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको खोजेंगे। I pray, Lord, that you will heal their hearts of any past issues. परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बीते कल के जो भी घटनाएं बातें हैं, आप उनके दिल में आप उसे चंगा करेंगे। That any pain or emotional disturbance that has happened will be addressed and healed. और हर एक दर्द या भावनात्मक दुख जो भी हुआ, आप उसे प्रभु ठीक करेंगे और उन्हें चंगा करेंगे। Lord, we pray that your kingdom will be followed in our homes, in our marriages. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका राज्य हमारे विवाह में और हमारे परिवारों में प्रभु राज्य करने पाए। Bring about whatever change you desire in our hearts, Lord. परमेश्वर, जो बदलाव आप लेकर आना चाहते हैं हमारे हृदय में, वो आने पाए। Thank you, Jesus. In your name we pray. यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you. धन्यवाद आपको पिता। Please give a big hand to Danny brother for he did such an excellent job. Thank you. Thank you so much. Thank you, students. So I'll meet you tomorrow, 2 o'clock. God कल bless. दोपहर में फिर से 2 बजे आपसे मिलेंगे।